प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस इरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसी एसी सर्किट के लिए तथा एलसीआर एसी सर्किट के लिए विश्लेषण करेंगे। साथ साथ हम लोग पावर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट भी जानेंगे। एलसी एसी सर्किट एल सी एसी परिपथ हम जानते हैं एल तथा सी परस्पर 180 अंश कालांतर पर होते हैं, अर्थात BL व BC परस्पर 180 अंश का कोण बनाते हैं। तब V इज इक्वल टू BL माइनस BC या V इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू IXL माइनस IXC ORR V इज इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं XL माइनस XC ORR V अपॉन I इज इक्वल टू XL minus XC, where V upon I is the impedance is equal to Z. Therefore, Z is equal to XL minus XC. हम जानते हैं XL is equal to ओमेगा एल एंड XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। लिख लीजिए आप लोग। देयरफॉर Z इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। In a LC AC circuit, if impedance of a circuit will become 0, it means Z is equal to 0, then 0 is equal to
ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी ओ आर आर, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ where f is a frequency, therefore 2 pi f is equal to 1 upon under root L C, then f is equal to 1 upon 2 pi under root L C. In condition LC circuit, the impedance of a circuit will become 0. Therefore, circuit is also known as a resonating circuit. जब LC परिपथ में धारा व विभवांतर के बीच कलांतर 180 अंश होता है, उस स्थिति में प्रतिबाधा शून्य होने पर LC AC परिपथ अनुनादी हो जाती है, जिसके लिए हमें आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग LCR AC परिपथ के बारे में विश्लेषण करते हैं। LCR AC सर्किट LCR AC परिपथ LCR AC परिपथ में BL, BC, BR विभवांतर पाया जाता है, जिनमें BL तथा BC 180 अंश कलांतर पर होते हैं तथा BR LC के साथ परस्पर 90 अंश कलांतर में होते हैं। तब
BL, BC, PR 90 degree, phi and V. Therefore, V square is equal to BL minus BC whole square plus BR square. V is equal to under root BL minus BC whole square plus BR square. V is equal to under root I XL minus I XC whole square plus IR whole square. V is equal to I under root XL minus XC whole square plus R square. V upon I is equal to under root XL minus XC square plus R square. V upon I is also denoted as Z is equal to under root XL minus XC whole square plus R square. आपने देखा BL and BC are in the form of opposite to each other and BR is also 90 at the degree. Therefore, V square is equal to BL minus BC whole square plus BR square. V is equal to under root BL minus BC whole square plus BR square. V is equal to BL is IXL minus BC is IXC whole square plus BR is IR whole square. V is equal to I कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. V upon I is equal to under root XL minus XC whole square plus R square. Therefore, Z is equal to under root XL minus XC square plus R square. Z is equal to under root XL minus XC whole square plus R square. XL is equal to omega L and XC is equal to 1 upon omega C. Therefore, Z is equal to under root omega L minus 1 upon omega C whole square plus R square. Z is equal to omega L minus 1 upon omega C whole square plus R square. Omega is equal to 2 pi f. Therefore, Z is equal to under root 2 pi f L
माइनस 1/2πfc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार हमें परिपथ में प्रतिबाधा Z √2FL माइनस 1/2πfc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग LCR परिपथ में कलांतर के बारे में सीखें। tan phi इज इक्वल टू BL माइनस BC अपॉन BR। देयरफॉर phi इज इक्वल टू tan इनवर्स VL माइनस BC अपॉन BR। BL इज इक्वल टू IXL and BR is equal to BC is equal to IXC, then B is equal to BR is equal to IR। therefore phi is equal to tan inverse IXL माइनस IXC अपॉन IR। phi is equal to tan inverse XL माइनस XC अपॉन R। phi is equal to tan inverse in bracket omega L माइनस 1/omega C होल अपॉन R। phi is equal to tan inverse टू पाई FL माइनस 1/2πfc होल अपॉन R। इस प्रकार हम लोग RLC सर्किट में फाई का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग विभिन्न प्रकार के परिपथों में औसत शक्ति के बारे में जानते हैं। पावर ऑफ AC सर्किट। AC
परिपथ की शक्ति। नंबर 1 जानते हैं आर ए सी परिपथ की शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं आर ए सी सर्किट में धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं, अतः V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी पावर P इज इक्वल टू V I, P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। P इज इक्वल टू B नॉट इंटू I नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी न साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ। देयरफॉर P इज इक्वल टू B नॉट इंटू I नॉट इंटू हाफ। P इज इक्वल टू B नॉट बाई रूट 2 इंटू I नॉट बाई रूट 2। देन P इज इक्वल टू B आर एम एस इंटू I आर एम एस। पावर ऑफ एसी सर्किट, एसी परिपथ की शक्ति के बारे में बात करेंगे। आर ए सी परिपथ की शक्ति हम जानते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। पावर ऑफ P इज इक्वल टू V इंटू I, देयरफॉर P इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी। P इज इक्वल टू B नॉट इंटू I नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है हाफ, देयरफॉर P इज इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट इंटू 1/2। इट इज ऑल्सो राइट एज P इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2 and I naught by root 2. Then P is equal to B RMS into I RMS, because B naught by root 2 is equal to the B RMS and I naught by root 2 is equal to I RMS. Therefore, P is equal to B RMS into I RMS. अब हम लोग विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ के बारे में शक्ति की गणना करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एसी सर्किट।
अन्य विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ की शक्ति। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पावर होता है P इज इक्वल टू वी आई होता है। V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई तथा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। कभी परिपथ में धारा विभव से आगे, कभी विभव धारा से आगे होता है। तब विभिन्न प्रकार के परिपथों में हम पाते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि हम जानते हैं, इनमें विभवांतर आगे तथा धारा पीछे है। तब शक्ति P इज इक्वल टू V इंटू आई। V तथा I का मान रखने पर P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। P इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। P इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। साइन ए प्लस बी से साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। Therefore, P is equal to V naught into I naught in bracket sin square omega t into cos phi plus sin omega t into cos omega t into sin phi। P is equal to B naught into I naught in bracket sin square omega t into cos phi plus half into 2 sin omega t into cos omega t into sin phi। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
P is equal to V naught into I naught in bracket sin square omega t into cos phi plus half sin 2 omega t into sin phi. Sin omega t sin 2 omega t sin 2 omega t is equal to 0. Therefore, P is equal to B naught into I naught into sin square omega t into cos phi sin square omega t is equal to half. Therefore, P is equal to B naught into I naught into half into cos phi. P is equal to B naught by root 2 into I naught by root 2 into cos phi. P is equal to B RMS into I RMS into cos phi. होल साइकिल के लिए sin 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू cos phi. Sin square omega t is equal to also 1 by 2. Therefore, P is equal to V naught into I naught into 1 by 2 into cos phi. It is also right as P is equal to V naught by root 2 into I naught by root 2 into cos phi. Therefore, P is equal to V naught by root 2 is known as a BRMS and I naught by root 2 also known as a IRMS, and cos phi is a power factor. Cos phi is a power factor.